Good morning, students. Today I am going to teach operations of set. Operations of set, or second name algebra of set. Operations of set or algebra of sets. First, union of two sets. सेट्स का मेन चीज अब यही है, यूनियन ऑफ टू सेट्स. सेकेंड, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. थर्ड, complement of a set. Difference of two sets and disjoint sets. आज हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ सेट या ऑपरेशंस ऑफ सेट. यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिसजॉइंट सेट. First, union of two sets. Union of two sets. Let A and B are two sets, then union of A and B written as A union B. written as A, इसको पढ़ेंगे A union B, is a set having elements either belonging to A or to B or to both. Let N be a two sets, then union of A and B written as A union B is a set having elements either belonging to A or to B or to both. That is, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको शॉर्ट में अगर डिफिनेशन लिखना चाहें, A union B is equal to X such that X belongs to A or X belongs to B. इतना काफी है सेट बिल्डर फॉर्म में. इसी को शॉर्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गया. A union B is equal to X such that X belongs to A or X belongs to B. Example, if A is equal to 1, 2, 3, 4 and B is equal to 3, 4, 5, 6, इसका A यूनियन B क्या होगा? A union B is equal to
1 2 3 4 5 6 कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और अगर रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लिखाएगा सेट में, 3 4 दोनों में नहीं लिखाएगा। 1 2 3 4 5 6 इसका वेन डायग्राम, वेन डायग्राम भी आप भी बताते कर रहे हैं। वेन डायग्राम वेन डायग्राम ए और बी दो सेट्स हैं, दोनों का यूनियन क्या होगा, जितना दोनों को मिला दीजिए शेडेड पोर्शन। ए हो गया ए यूनियन बी, जनरल ए एंड बी आर टू सेट्स। जैसे इस केस में अगर हम बनावे तो 1 2 3 4 कॉमन है, 3 4 इस पोर्शन में आएगा और इधर आएगा 5 6। ऐसे आप केवल जनरल बता रहे हैं। वेन डायग्राम, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, A and B means shaded portion denotes A union B. दूसरा केस, if इस केस में क्या है, A B, if A is subset of B, if A is subset of B, proper subset है यहाँ पर, तो क्या हो, इस केस में क्या होगा, A union B, A union B is equal to B. A union B, if ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, if A is subset of B, then A union B is equal to B. इसी का कन्वर्स, if B is subset of A, then A union B is equal to A. A union B is equal to A. जो लार्जर सेट होगा वही उसका यूनियन। दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। सेट का मेन चीज यही है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, डिसजॉइन। दूसरा intersection of two sets, intersection of two sets। Let सॉरी पावर कट हो गया था। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, A and B are two sets, then intersection
intersection of A and B written as A intersection B. Is a set having elements belonging to both A and B. Let n be a two sets, then intersection of A and B written as A intersection B is a set having elements belonging to both A and B. That is, शॉर्ट में अगर इस चीज को लिखना चाहें, A intersection B is equal to X such that X belongs to A and X belongs to B. ध्यान दीजिए, पहले वाले में क्या था, X belongs to A और X belongs to B, और इसमें क्या है, X belongs to A and X belongs to B, और एंड का डिफरेंस केवल है. एग्जाम्पल A is equal to, वही एग्जाम्पल दे रहे हैं जो पहले देते हैं, 1 2 3 4 and B is equal to 3 4 5 6. Then A intersection B is equal to वैसा एलिमेंट जो दोनों में बिलोंग करता है, 3 4 and 3. सेट हैविंग एलिमेंट बिलोंगिंग टू बोथ A and B, दोनों में बिलोंग करने वाला यही दो है, 3 4 3. A intersection B is equal to 3 4. A intersection B is equal to 3 4. अब इसी का वेन डायग्राम, intersection. A and B are two sets. Intersection of A and B is this portion. This portion is कॉमन जो है दोनों में, A और B में दोनों. इसे भी एग्जाम्पल में 3 4 इस पोर्शन में आएगा. दूसरा एग्जाम्पल अगर दें, AB if A is subset of B, here A is subset of B, then A intersection B is equal to only A. और इसका कन्वर्स, if B is subset of A, then A intersection B is equal to B. ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. If A is subset of B, then A intersection B is equal to A. If B is subset of A, then A intersection B is equal to B. ये प्रॉब्लम बनाने में भी हेल्प करेगा बहुत. अब तीसरा है डिफरेंस सॉल्यूशंस.
difference of two sets. Difference of two sets. Let A and B are two sets, then difference of A and B written as A minus B, written as A minus B is a set having elements belonging to A but not to B. A में बिलोंग करेगा लेकिन B में बिलोंग नहीं करेगा. दैट इज शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? सेट बिल्टन फॉर्म में A माइनस B इज इक्वल टू X such that X belongs to A and X does not belong to B. A में बिलोंग करेगा लेकिन B में बिलोंग नहीं करेगा. इस बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसका यूज होगा आगे एप्लीकेशन में. एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल लेगा. इफ A इक्वल टू 1 2 3 4 and B इक्वल टू 3 4 5 6, then A minus B equal to those elements belonging to A but not to B. 1 A में बिलोंग कर रहा है लेकिन B में बिलोंग नहीं करेगा, तो 1 हो गया. 2 A में बिलोंग कर रहा है लेकिन B में बिलोंग नहीं कर रहा, 2 भी होगा. 3 A में बिलोंग करता है और B में बिलोंग करता है, इसलिए नहीं होगा. वैसा एलिमेंट जो A में बिलोंग करता है और B में बिलोंग नहीं करता है, उस केस में मात्र 2 ही है, 1 और 2. सिमिलरली अगर हमको we have to find B minus A, इसका मतलब क्या होगा? those elements of B which does not belongs to A, B का वो सब एलिमेंट को हर को देख जाएंगे जो A में बिलोंग नहीं करेगा वही होगा. 3 इसमें भी है, 3 B का वो सब एलिमेंट जो इसमें बिलोंग नहीं करता. ये तो 3 इसमें बिलोंग करता है, 4 इसमें बिलोंग करता है, 5 B का ऐसा एलिमेंट है जो A में बिलोंग नहीं करता है. क्या हो जाएगा? 5 6 इसका एलिमेंट है लेकिन इसमें बिलोंग नहीं करता है. 6 इसका एलिमेंट क्या हो गया? 5 6. यानी हम लोग क्या देखे? दैट इज देयरफॉर A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A. दोनों दो चीज है. A माइनस B और B माइनस A दोनों डिफरेंट है. एक्सरसाइज में ऐसा ही प्रॉब्लम है, प्रूव दैट A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A और सेट दिया हुआ रहेगा. अब इसका वेन डायग्राम
खासकर इस चैप्टर का यूज होता है, प्रोबेबिलिटी में वो ज्यादा यूज होता है। क्लास 12 में प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, 11 में भी है, तो सेट थ्योरी का कंसेप्ट सब उसी में चला गया है। ए और बी दो सेट्स है। इस पोर्शन को जो हम सेट कर रहे हैं, एक पोर्शन कहलाएगा ए माइनस बी, दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और बी माइनस ए एक पोर्शन जिसमें हम पॉइंटेड दिए। एक पोर्शन क्या होगा, बी माइनस ए। लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है जिसमें हम स्ट्रेट लाइन दिए हैं, ए माइनस बी, और राइट साइड जो पॉइंटेड दिए बी माइनस ए, दैट इज ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। और इस सेट से क्लियर है, दैट इज फ्रॉम एवं वेन डायग्राम ए, और ए पोर्शन क्या होगा, ए पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी, ए अनसाइडेड पोर्शन एवं वेन डायग्राम A union B can be written as A minus B union A intersection B union B minus A। इस वेन डायग्राम को हम ऐसे भी लिख सकते, A union B can be written as A minus B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन B माइनस A। इस तीनों पोर्शन को अगर हम मिला दें तो क्या हो जाएगा, A यूनियन B। इसका यूज भी हम करेंगे आगे प्रॉब्लम बनाने में। A हो गया डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, लेफ्ट साइड का हो गया A माइनस B, राइट साइड का B माइनस। होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। लेट कैपिटल U इज एन यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, जो गिवन सेट को कहेंगे यूनिवर्सल सेट, एंड इज सबसेट ऑफ एक छोटा सेट है जो इसी का एलिमेंट होगा, ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, देन complement of A written as A पर डैश भी लिखते हैं, बहुत बुक में आपको मिलेगा A पर पावर C भी, दोनों A भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ A है, A भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। इज ए सेट having those elements of universal set U which does not belong to A। यूनिवर्सल सेट का वो सब एलिमेंट जो ए में बिलोंग नहीं करता है वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। जैसे एग्जाम्पल से ही क्लियर करेंगे। लेट यू इज एन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट अगर पूरे स्कूल के सेट से अगर हमको 11 क्रिकेट का प्लेयर चुनना है तो पूरा स्कूल का सेट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। अगर हमको क्लास 11 से चुनना है 11 प्लेयर तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा क्लास 11 का सेट।
हम अगर पूरे पटना से चुनना है 11 स्टूडेंट, तो पूरे पटना का जो स्टूडेंट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। जो गिवन सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यू इज एन यूनिवर्सल सेट एंड ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, देन complement of A written as A dash or A to the power C is a set having those elements of universal set that is U which does not belongs to A. That is, if X belongs to A, this implies X does not belongs to inversal set. That is, if X belongs to A, this implies that X does not belongs to this example. A is equal inversal set. A inversal set. Inversal set is equal to 1, 2, 3 up to 10. A is equal to 1, 2, 3, 4. A dash क्या होगा? Complement of A. Those elements of inversal set which does not belong to A, क्या क्या होगा? 5, 6, 7, 8, 9. एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। A यूनियन A डैश इज ऑलवेज इनवर्सल सेट। A यूनियन A डैश इज ऑलवेज इनवर्सल सेट एंड A इंटरसेक्शन A डैश इज ऑलवेज नल सेट। इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? कुछ भी कॉमन नहीं होगा, नल सेट। और A यूनियन A डैश इज इक्वल टू इनवर्सल सेट। वेन डायग्राम भी हम लोग पढ़ें। वेन डायग्राम इनवर्सल सेट थोड़ा आप चेंज कर देते हैं। ए है इनवर्सल सेट, इनवर्सल सेट गिवन सेट, और ए इज ए सबसेट ऑफ इनवर्सल सेट। तो ए डैश कौन होगा? इतना छोड़कर, ए सेट को छोड़कर जितना भी हम सेट कर रहे हैं, ए पोर्शन क्या हो जाएगा? ए डैश। ए पोर्शन जो साइडेड पोर्शन है ए डैश और ए पर पावर सी। इट इज क्लियर दैट A union A dash is equal to inversal set and A intersection A dash is equal to null set. A union A dash is equal to inversal set and A intersection A dash is a null set. और लास्ट एक हम बताने जा रहे हैं डिसजॉइंट सेट। पांचवा है disjoint set. Disjoint set. Two sets A and B are said to be disjoint if
A intersection B is equal to 5 means null set. A intersection B is a null set. As example, if A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 4, 5, 6, इस दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है. तो A intersection B is equal to 5. Therefore, A and B are disjoint set. Disjoint set. और अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा कि A सेट हो गया और एक B सेट हो गया. दोनों में कुछ भी कॉमन, इसमें 1, 2, 3 है, इसमें 4, 5, 6 है और A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5. दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा. तो आज हम लोग पढ़े हैं 5 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, इसका ऑपरेशन ऑफ सेट्स. ऑपरेशन ऑफ सेट्स में फिर एक बार हम रिवीजन करवा दें. ऑपरेशन ऑफ सेट्स में क्या क्या बताया? पहला यूनियन ऑफ टू सेट्स, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, तीसरा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, चौथा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स और पांचवा डिसजॉइंट सेट्स. और इसी पर बेस्ड मैं प्रॉब्लम कल के क्लास में मैं करूंगा. आज केवल मैं बता हूं इसका डेफिनेशन और सभी का एग्जाम. ओके, थैंक यू very much.